Welcome students. We have done up to question number 10. Now question number 12. See, question number 12. Particular of the income of Shri Devendra Singh are as under for the year ending 31st of March 19. Profit from sole trading concern. रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें दिया है रेंट रिसीव्ड. टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिया है, रेंट रिसीव्ड दिया है. ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपी, तो एग्जेम्प्ट. इन द चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी I have already told you that any share of profit received from association of person, body of individual, firm is exempt under the hands of SSE. So it will be exempt. Dividend from Indian company also exempt. Long term capital loss on jewelry, long term capital loss, long term capital gain on the sale of other assets. Business loss 96,000 brought forward from the previous year. Next it is given calculate gross total income of Shri Devendra Singh. See, फर्स्ट हेड सैलरी कुछ नहीं दिया है. सेकेंड हैंड हाउस प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे रेंट रिसीव्ड दिया है और हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना. फिर आपको दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये भी टैक्सेबल नहीं होता है. फिर डिविडेंड और लॉन्ग टर्म. आईओएस की इनकम भी नहीं दी हुई है डिविडेंड के अलावा. चलो कैलकुलेशन होमवर्क डन, होमवर्क किए. Calculation of gross total income. First head salary, no income of salary is given. Second head house property, so actual rent is given, no other information is given, so directly we will go write actual rent 48,000 less
Municipal tax not given. NAV 48,000 less deduction under section 24. Standard deduction 48,000 into 30%. $14,400. Now, income from house property. $33,600. Clear? 33,600. आपने इससे पहले जो भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो सारे क्वेश्चंस में हमको ये एक्चुअल रेंट नहीं दिया होता था, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दी होती थी, और यहाँ पे आपको रेंट रिसीव दिया है। बस यही फ़र्क है पहले के क्वेश्चंस में और अभी के क्वेश्चन में। ये वाले में हमको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और इनकम क्या दी हुई है। जैसे सैलरी में बताया था ना, टैक्सेबल सैलरी एंड सैलरी रिसीव्ड दोनों में फ़र्क है, सेम वैसे ही रेंट रिसीव्ड एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स आफ्टर कंप्यूटेशन, सो डायरेक्टली वी विल राइट दिस अमाउंट, but it is given actual rent received, so we will write actual rent received, then we will calculate the income from house property. Next, third, PGBP. See, point number 1, profit from sole trading concern. Profit from sole trade 60,000. Now, after point number 6, it is given business losses 96,000 brought forward from the previous years. तो बिजनेस लॉस दिया है आपको, वो भी कितना लॉस दिया है, कितना बिजनेस लॉस दिया है, 96,000. As we know, if any loss is carried forward, then it can be adjusted only to the head which it belongs, है ना। तो जैसे ये पीजीपीपी का लॉस है तो किस में एडजस्ट होगा, पीजीपीपी में, इसके अलावा किसी अदर हेड में एडजस्ट नहीं हो सकता। अब लॉस की टोटल अमाउंट कितनी है, 96,000, और आपके पास प्रॉफिट कितना है, 60, तो हम एडजस्ट कितना करेंगे, 60 लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 96,000, remaining 36,000 business loss carried forward. Now, income from PGBP, nothing else is given, so income from PGBP will be nil. Understood? Income from PGBP will be 0, as whole income is used for
set of brought forward loss. Now fourth head, capital gain. Fourth head, capital gain. See, point number 5 and 6, long term capital gain. In point number 6, long term capital gain is given, and long term capital gain amount is 3,72,000 less long term capital loss. So the long term capital loss is 45,000. Now income from capital gain. No other income from capital gain is given. Short term capital gain or short term capital loss, nothing is given. So we will directly calculate income from capital gain. 3,72,000 minus 45,000. 3,27,000. Last head, income from other sources. So the income from other sources, there is point number 4, dividend from Indian company. So dividend from Indian company exempt. No other income is given from other sources. So income from other sources nil. Our gross total income from house property 33,600 plus income from capital gain 3,27,000, 3,60,600, our gross total income. Clear? Done? Understood? Now see question number 13. From the following particular given below, compute total income for the assessment year 1920. इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस कंप्यूटेड. देखो यहाँ पे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मतलब ये कैलकुलेट करके दिया है, लिखा भी है ब्रैकेट में कंप्यूटेड. नहीं लिखा होता तो भी हमको पता है कि ये कैलकुलेट करके फाइनल अमाउंट दी हुई है. ठीक है, ये रेंट रिसीव्ड नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे. एनुअल रेंटल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस
म्युनिसिपल टैक्सेस कोई काम का नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड दे दिया है हमको, ठीक है, लेट आउट हाउस का। फिर लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिक गुड्स बिजनेस आफ्टर डेप्रिसिएशन, पीजीपीपी की इनकम है ये। प्रॉफिट फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, पीजीपीपी। स्पेकुलेशन गेन फ्रॉम गोल्ड, पीजीपीपी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाउ the following losses has been brought forward from the previous year 1718. Loss from electric goods business, it can be adjusted to the income or profit from electric good business. Loss from agency business can also be adjusted to agency business. Speculation loss from silver, it can be adjusted to speculation loss of gold. Now unabsorbed depreciation, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहाँ एडजस्ट करते हैं, सबसे आखिरी में, एट लास्ट, वाइल कैलकुलेटिंग ग्रॉस टोटल इनकम। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोथ, इसको याद रखना, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट होगा, चलो देखते हैं। Calculation of gross total income. Our first head, salary. No income from salary is given, है ना, no income from salary is given. Second head, house property. Point number 1, income from let out house, 6,000. Point number 2, income from self occupied हाउस, नील। क्यों, क्योंकि इसमें हम एनएवी जीरो लेते हैं, नील, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो इस क्वेश्चन में हमको इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,000. नेक्स्ट थर्ड हेड, PGBP. So first, point number 4, profit from electric business, 10,000. Now see the following losses. First, loss number 1, less loss from electric business, and the amount of loss is 6,000. So profit from this business will be 4,000. Next, profit from agency business,
अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये लॉस किसी में भी एडजस्ट हो सकता है ना। ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बिजनेस का लॉस है तो इलेक्ट्रिक बिजनेस में ही एडजस्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी नॉर्मल बिजनेस का लॉस किसी भी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट में एडजस्ट हो सकता है। ये तो हेड सेम दिया करके मैं एक साथ लिख रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सब प्रॉफिट लिख लो पहले, फिर एक साथ सब लॉस को माइनस करना, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि इसका बिजनेस का लॉस यहीं एडजस्ट होगा, वो किसी में भी किसी भी बिजनेस की इनकम में एडजस्ट हो सकता है। मैं बस सिक्वेंशली लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो बताया कि इसका प्रॉफिट लिखो फिर ये एजेंसी बिजनेस का प्रॉफिट लिख लो, ठीक। उसके बाद दोनों को प्लस करके फिर दोनों का लॉस माइनस कर दो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 3000। पॉइंट नंबर 2, लेस लॉस ऑफ एजेंसी बिजनेस 1000. Now income from this business is 2000. Next, then it is given speculation gain from gold. Speculation gain from gold. So gain from gold is 2000 less point number third of losses, speculation loss from silver. Speculation loss from silver amount is 4000. So the remaining loss of 2000 will be speculation loss कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि स्पेकुलेशन का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट में एडजस्ट हो सकता है, किसी और हेड या किसी और बिजनेस की इनकम में एडजस्ट नहीं हो सकता, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। Next, no other income from PGBP is given. Now we will calculate income from PGBP. So the income from PGBP will be 4 plus 2, 6000. Next head is fourth, capital gain. So first, long term capital gain. Our long term capital gain is 7000 less long term capital loss. Point number 5 of losses, long term capital loss 4400. So our taxable long term capital gain 2600. Now short term capital gain.
short term capital gain is 2000 less short term capital loss. So short term capital loss is 3000, remaining loss 1000. Now this loss can be adjusted to शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किस में एडजस्ट हो सकता है? दिस लॉस कैन बी एडजस्टेड टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ गेन निकाल लिया है, बट इसका अमाउंट हमने अंदर लिखा. क्यों लिखा? क्योंकि इसमें से जो भी लॉस आएगा वो हम लॉन्ग टर्म में एडजस्ट कर सकते हैं. इसलिए बोलता हूँ कि पहले लॉन्ग टर्म लिखो फिर शॉर्ट टर्म लिखना, क्योंकि इसका लॉस भी यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं अपन, है ना. तो 2000 minus 3000, 1000 loss, and this loss will be adjusted to long term capital gain. So our income from capital gain 1600. Point number 5. Fifth head, income from other sources. No income from other sources is given. Now we will calculate our gross total income. No income from salary. Income from house property 6000 plus income from PGBP 6000 plus capital gain 1600 is equal to 13600. Now we will deduct less unabsorbed depreciation. An amount of unabsorbed depreciation is 1000. So our actual gross total income is 12,600. Understood? So our actual gross total income is 12,600. क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे माइंड में मैप बन जाना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, उसके बाद उसको लिखोगे. उस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने अगर बैठ गए हम तो एग्जामिनेशन हॉल में पक्का गलती करेंगे, क्योंकि हम हेड्स को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे में. सो वी हैव टू प्रॉपरली रीड आवर क्वेश्चन एंड देन वी हैव टू डिसाइड under which head what losses are to be adjusted, and accordingly question will be solved. Question number 11, homework. See, question number 14. Below are the particulars of the income of Shri Mohan Lal for the assessment year 1920. First,
rent received from house property. See again here rent received is given. As we solve question number 13, sorry 12, same we are going to do in question number 14. We will calculate income from house property. Clear? Next, profit from cloth business. Share of profit from a firm of Ram, Mohan and Sohan. Share of profit from firm, it is exempt. ऐसे जो पॉइंट्स रहते हैं ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एओपी, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन सब को लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नोट लिखना है और वहाँ पे इसको लिखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट, बस इतना ही लिख देना है. तो इसको भी हम नोट में कवर करेंगे. फिर स्पेकुलेशन प्रॉफिट, कैपिटल गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, कैपिटल गेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. नीचे द फॉलोइंग लॉसेस हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड फॉर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. लॉसेस फ्रॉम क्लोथ बिजनेस, सो इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम क्लोथ बिजनेस. स्पेकुलेशन लॉस, द स्पेकुलेशन बिजनेस हैज़ बीन क्लोज. तो इससे कोई मतलब नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ. क्लोज है, कंटिन्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है. हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परमिशन देता है कि आप क्या कर सकते हो, अपने लॉसेस को कभी भी एडजस्ट कर सकते हो, वेदर बिजनेस इज गोइंग कंसर्न और हैज़ बीन क्लोज्ड. ठीक है, तो ये लॉस हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, ऊपर जो स्पेकुलेशन प्रॉफिट दिया है वहाँ पे. फिर लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट एंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. क्लियर? सेम क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है, ये आप बना लेंगे. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 11, 14, 15 also. Next we will solve tomorrow. These 3 questions are homework, 11, 14 and 15. Thank you. Have a nice day.